आज हम सभी आदरणीय श्रीमती सरोज बाला जी की पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी इसके विमोचन के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य, डीन स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये विजन इंडिया पब्लिकेशन और संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और संपूर्ण बंगाल में एक प्रसिद्ध गायनोलॉजिस्ट के रूप में आपको जाना जाता है। आपका लगभग 28 साल का अनुभव है और वर्तमान में आपके ऊपर भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व आपके ऊपर है। माननीय, आपके कंधों के ऊपर भारत सरकार की शिक्षा का दायित्व है। मैं अपनी सम्माननीय कुलगुरु महोदया आदरणीय प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी से सादर अनुरोध करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र के द्वारा, ये परंपरा है। दाक्षिणात्य अंग वस्त्र, पौधा हमारी संस्कृति का, पर्यावरण का प्रतीक, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह के रूप में, और ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा सम्मान लोगो जेएनयू का आपको प्रदान करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। हमारे मध्य में अनेक विश्वविद्यालयों में कुलपति के दायित्व का निर्वहन जिन्होंने किया, माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जो शिक्षा रत्न अवार्ड 2022 जिनको मिला, हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में आपके ऊपर कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा महेंद्रगढ़ का दायित्व है। सारस्वत अतिथि के रूप में आदरणीय श्री संतोष कुमार तनेजा जी हैं, जो संकल्प जन कल्याण समिति के सम्माननीय संस्थापक हैं। और जिनके नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारी मातृशक्ति के रूप में जो विराजमान है, हमारी बड़ी बहन के रूप में जो विद्यमान है, आदरणीय श्रीमती सरोज बाला जी, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन मैडम, आपका स्वागत। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतयश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतयश्च वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतयश्च वो नमो नमः। I welcome you all to Mini India, that is Jawaharlal Nehru University. Honorable Dr. Subhash Sarkarji, Minister of State for Education, who has been one of our very good friends, Professor Tankeshwar Kumarji, another colleague of mine, Vice Chancellor of the Central University of Haryana, Shri Santosh Taneja ji,
whom I am so happy to meet today and welcome sir to Jawaharlal Nehru University. Srimati Saroj Bala ji, who's the real, Utsav Murti today, who has made us all come together, and Jawaharlal Nehru University is extremely fortunate to be associated with her books and her work. There we have Seema Kushwaha. We are very happy to have you here, a very brave young advocate, and I hope many in JNU will follow her path in being as brave. Rectors, faculty, and Professor Sudhir Arya, who has been the chief of the event management team. We are very happy that we are here able to connect tradition with modernity, continuity with change, realm with region, and myth with reality. And as well as science with spirituality, and facts with values. This book, which Srimati Saroj Bala has done, is a lifelong commitment and service. It is making us refute the claims that the West has made that all our texts are myths, all our figures are not historical figures. She has made a paradigm shift there, where she has proved that our texts are factual, historical, only because we have not been a written civilization, but rather an oral. And the Shruti Smriti tradition of ours, to a large extent, put us at a disadvantage. I am also happy that more number of Indians are writing on our own history and culture. Otherwise, we are being interpreted by the West. The problem with the West is they come here for 3 months and they think they know everything about India. If they stay for 3 years, they will be totally confused. And if they stay for 10 years, they will never write a book on India. Because we are so complex, so diverse. I congratulate you, madam, and I hope more will follow your path so that we will be able to have more books. And I also congratulate her on writing on the Mahabharata. Because I would say that the first feminist is Draupadi. And we as an Indic civilization must be proud. We are a feminist civilization, as all our powerful gods with the powerful portfolios are women. And hence I welcome you all to this program, and I hope JNU can host many more, and we are also part of this shift towards Indic narratives and multiple narratives. Once again, I would welcome all of you and just say thank you, namaste, vanakkam. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah। बहुत ही अद्भुत पुस्तक अब हिंदी में आई है, महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी। बहुत आवश्यक है कि लोग पुस्तकें खरीदे भी है। पहले गरुड़ से अंग्रेजी में आई थी महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस, और अभी हिंदी में बहुत ही सुंदर पुस्तक आई है। और पुस्तकों का लेना और पढ़ना, लेखक तो पुस्तक लिख देते हैं, लेकिन पुस्तक का पढ़ना उसके लिखने से भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक पढ़ी नहीं जाएगी तो उस पुस्तक का जो लेखक का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो सभी संकल्प लें पुस्तक को पढ़ना, खरीदना और लोगों के पास पहुंचाना, ये बहुत ही आवश्यक है। अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। युकातान पेनिनसुला में मैं सियाटल से आया हूँ, अभी लगभग 30 साल सियाटल रहा। तो वहाँ नॉर्थ अमेरिका में युकातान पेनिनसुला में मायन सिविलाइजेशन है, और उनकी जो पांडुलिपियाँ थी, जब वहाँ पे मिशनरी आए तो उन्होंने कहा ये सब बाइबल से तो कुछ मिलता जुलता नहीं है, तो वो सब जला दी जाए, इस ज्ञान का कोई फाउंडेशन नहीं है। तो सारी की सारी उन्होंने हजारों पांडुलिपियाँ मायन्स की जला दी, और उसके बाद उन्होंने इतिहास लिखा मायन्स का कि ये ऐसे थे वैसे थे, और उनका जब इतिहास उनका स्वयं का लिखा था वो जला दिया गया। और भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत में नई नई थ्योरीज बनाई गई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई गई। हमारी सारी की सारी जो परंपरा थी, एक ज्ञान परंपरा थी, इतिहास परंपरा थी, उस सब को कहकर कि ये तो बैकवर्ड लोग हैं, मिथिकल लोग हैं, इसलिए क्योंकि उनकी तो मान्यता थी कि जो पृथ्वी है
वो केवल 6000 साल पुरानी है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 1905 का जो इंसाइक्लोपीडिया है, तब तक आप डेट ऑफ द अर्थ को 4004 BC पाएंगे। यानी कि उनकी जो क्रिश्चियन कैलकुलेशन के हिसाब से, उन्होंने बाइबल के हिसाब से कैलकुलेट किया, सारी उनकी जनरेशन को हिसाब से कैलकुलेट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी की रचना ही 4000 BC के करीब हुई है। और बहुत सारे सबूतों को, ये जेम्स मिल हिस्ट्री लिख रहे हैं या और लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं, बहुत सारे सबूतों को उन्होंने इसी बात पे दरकिनार कर दिया कि ये देखो, इनका तो इतना अंधविश्वास है, ये तो कहते हैं पृथ्वी लाखों अरबों साल पुरानी है, कितने बेवकूफ लोग हैं, हमको तो पता है, दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ कि पृथ्वी केवल 6000 साल पुरानी है। तो इसलिए ये सब मिथ्या है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। तो ये आधार रहा है जिस आधार पर हमारी क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो 19वीं सदी में हमारी हिस्ट्री लिख रहे थे, ये सारे ओरिएंटलिस्ट थे, विलियम जोन्स और ये सब के सब लोग जो लिख रहे थे, वो सब इस डेट को कि पृथ्वी सिर्फ इतनी बड़ी है, उनके लिए ये बिल्कुल सच था, जैसे गॉस्पेल ट्रूथ जो अंग्रेजी का शब्द है। तो जो अब सरोज जी ने किया है काम, ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मायन की तो उन्होंने पांडुलिपियां जला दी, हमारी महाभारत सब जगह पाई गई, प्रचलित थी उसकी पांडुलिपियां कैसे सब जलाते हैं। और उससे भी जो अद्भुत बात है कि अगर आपने महाभारत में समझ लो डेट लिख देते कोई कि ये डेट है, उसमें लिख देते, तो वो आगे की पीढ़ियां उस डेट को समझेगी भी, वो कौन से आधार पर लिखी गई है वो किसी के समझ में शायद ना आए। लेकिन महाभारत में नक्षत्र कहां पर है उस डेट को वो बता दिया। आप पांडुलिपियों तो जला सकते हैं, सितारों को कैसे जलाएंगे? तो इसीलिए ये जो कहानी और ये जो सब तथ्य लिखे हैं सरोज जी ने, ये महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी और सितारों की जुबानी है। एक अलाइनमेंट होगी, प्लानिटरी अलाइनमेंट है, जो कि आपको किसी एक डेट पर ही मिलती है। तो वो एक डेट आधार बन गया और उससे फिर वो उन्होंने बाकी श्लोकों को जब एनालाइज किया तो देखा कि बाकी श्लोक भी उस डेट के अनुसार, जब वो एक्लिप्स बोल रहे हैं तब एक्लिप्स हो रहा है, वो सब का सब उस डेट के आधार पर चलता चला गया। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य है जिससे बिना किसी की डाउट के आपको महाभारत की डेट मिल जाती है। दूसरी उसमें अद्भुत बात, उन्होंने यही नहीं कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, उन्होंने 3 प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा किया। एक एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी आपको एक टेक्सचुअल एविडेंस आपने इकट्ठा कर दिया, लेकिन आपको वैलिडेट करना है कि आर्कियोलॉजी उसको वैलिडेट करती है या नहीं करती। तो इसमें एक बहुत अद्भुत मैप है पुस्तक में, जिसमें जो कहाँ हमारी कहने का तथाकथित हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोल दिया है, उसकी कहाँ डिग्स मिली हैं, कहाँ महत्वपूर्ण जगहें थी। और उन्होंने पाया कि जो महाभारत में जुड़ी हुई राज्य थे वो उन्हीं जगह उनके महत्वपूर्ण शहर थे, वहीं पर हमको डिग्स मिली हैं। और वहाँ पे उसकी जो कार्बन डेटिंग की, वो डेटिंग भी लगभग उन्हीं डेट्स की वस्तुएं मिल रही हैं जिस डेट की इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से डेट निकाली। और तीसरी जो बात, फिर उन्होंने पैलियो बॉटनी और आर्कियोबॉटनी का प्रयोग किया, जिसमें कि कुछ जैसे एक विलो ट्री है, वो विलो ट्री 3000 या समझ लो 3500 BC के बाद वो कम होना शुरू किया और 3000 के बाद लगभग लुप्त हो गया। तो अगर 3000 के, और उसका वर्णन महाभारत में है, तो अगर उसका वर्णन महाभारत में है यानी कि महाभारत 3000 BC से पहले होगी, तभी उसका वर्णन हो सकता है। और महाभारत की एक बहुत अद्भुत बात यह है कि हम सोचते हैं महाभारत केवल ये 2 पक्षों की कहानियां हैं, पांडवों और कौरवों की कहानियां, लेकिन महाभारत ये नहीं है। महाभारत एक विश्वकोश है। महाभारत इज एन एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि भारत का सारा जो ज्ञान है उसको एक जगह एकत्रित करके ये महाभारत लिखी गई। श्रेय सरोज जी को बहुत एक बारी उनको, मुझे बहुत ही खुशी है कि आज
ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रहा है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसा ही कार्यक्रम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में किया गया, जहाँ पर मैडम ने जो रामायण, वाल्मीकि रामायण में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो दर्शाए और लोगों ने इतना सराहा कि लोगों को लगा कि ये भी एक विषय है जिसमें हम सबको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। हम सभी लोग त्योहार मनाते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, सभी लोग त्योहार मनाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि चाहे हम इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो, हमारी आस्था है, हम उसको पूरी आस्था से मनाते हैं। लेकिन यदि ये आस्था हो सकता है कभी टूट जाए, लेकिन यदि हम इसको मान लें कि ये सच्चाई है या इसको स्थापित कर दें कि ये सच्चाई है, तो वो आस्था जो है विश्वास में बदल जाती है। तो सबसे बड़ा जो कार्य, जो किताब जो आज करने जा रही है, कि वो हमारा, जिसमें कभी कुछ लोग हो सकता है उनकी आस्था हो, उनको लगता हो कि ये सच नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज जो है इसमें जो विश्वास की जो है आज मैडम सरोज बाला की किताब से जो है उसमें उन्होंने सारा जो अभी बताया, जैसे कि साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। यदि आप वाल्मीकि रामायण भी देखें और महाभारत भी देखें तो उसमें पढ़ेंगे आप कि कैसे हम अपने ग्रहों की दशा को बताते थे। तो यदि आज भी यदि हमें समय का, एक दिन के समय की भी बात करनी हो, तो हम सूरज की तरफ देखकर या चंद्रमा की तरफ रात को देखकर या देख सकते हैं कि क्या इसमें आजकल कौन सा समय चल रहा है, क्या समय चल रहा है। तो यदि हम पूरे ग्रहों को देखेंगे तो हमें ग्रहों की दशा को यदि हम उसको देख पाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि कौन से दिन चल रहे हैं, कौन से, मतलब आप पूरी उनकी, मैं समझता हूँ कि आप पूरे समय को दर्शा सकते हैं। यदि किसी डेट को रिकॉर्ड करना हो, वर्ष को रिकॉर्ड करना हो, शताब्दी को भी रिकॉर्ड करना हो, तो हमें सिर्फ ग्रहों की दशा पे करना है। तो आज भी हम देखें, यदि हॉरोस्कोप हम देखते हैं, उस ग्रहों की दशा में ग्रहों की दशा जो है वो दिखाई जाती है। ग्रहों की दशा से उसकी भी पता चलता है कि उस समय क्या था। आज समय यदि उस स्थान पता हो तो हम हॉरोस्कोप बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है यदि हम रिवर्स कैलकुलेशन जो है मैडम सरोज बाला जी ने जो करके बताया कि कैसे हम रिवर्स कैलकुलेशन जो है हम करते हैं तो ये डेट्स निकलती हैं। तो ऐसा जो हो पाया है, सर बता रहे थे कि प्लेनेटेरियम ऑस्ट्रेलियम सॉफ्टवेयर के जरिए जो ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो साइंटिस्ट जो है, जो मैं जो कह रहा कि बुक की जो महत्व है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत है, क्योंकि ये अभी पॉसिबल हो पाया। यदि ये हम सोचते कि इसे हम 50 साल या 100 साल पहले कर पाते, ऐसा शायद ना पॉसिबल होता, क्योंकि उतने आधुनिक कंप्यूटर हमारे पास नहीं थे, उतने आधुनिक सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो ये साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम जो है अपने इतिहास की जो जिसे हम कहते हैं किताबें हैं उसमें से कुछ ढूंढें और उसको स्थापित करें। सच्चाई को स्थापित करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी, आज हम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हो सकता 20 साल बाद 30 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें आए तो आपको उसमें और भी जो है इतिहास को अपने को स्थापित करने का मौका मिले। तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्या ये हमारे जो विद्यार्थी हैं हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के विद्यार्थी हम 3 भागों में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारी एंशिएंट जो है कम से कम हिस्ट्री जो है महाभारत से शुरू हो, क्या रामायण काल से शुरू हो? क्या हम जो दिखा नहीं सकते कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC में हुआ था?
क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्यों नहीं जब हम इसे साइंटिफिकली हम प्रमाणित करते हैं कि इस डेट को उनका जन्म हुआ। मुझे सौभाग्य है कि मैं जैसे बताया कि हरियाणा प्रदेश से हूँ। हरियाणा में आर्कियोलॉजी के एविडेंसेस इतने हैं। मैं खुद जैसे मैं किताब देख रहा था कि किताबों में कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जो पुरानी जहाँ आर्कियोलॉजी उसमें निकली हैं, तो वो ऐसी तस्वीरें क्या ऐसे चित्र नहीं, मेरे पास ऐसी वस्तुएं मेरे विश्वविद्यालय में पड़ी है जो हम त्रिकनाड़ा से निकाल के लाए, राखीगढ़ी से निकाल के लाए हैं, बॉडीज निकली हैं, उनके डीएनए अभी हम उसमें कर रहे हैं। तो साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं उसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी रिसर्च करनी बाकी है। तो ये साइंटिस्टों के लिए नहीं, हिस्ट्री के लोगों के लिए भी बहुत है। देखिए, यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं कि संस्कृत एक भाषा है, और कई बार तो लोग उसे डेड लैंग्वेज बोल देते हैं कि जैसा नहीं है। कि यदि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यदि हमें हिंदुस्तान में साइंस करनी है, हो सकता है हमने भी गलती करी हो, हमें भी बचपन में गलती करी हो कि हमें नहीं ऐसा किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हमें हिंदुस्तान में साइंस भी को आगे बढ़ाना है और साइंस को पढ़ना भी है, तो ये साथ में जो जरूरी होना चाहिए कि हमें संस्कृत भी साथ में पढ़नी चाहिए, ताकि हम कुछ अपना उसमें ज्ञान जो है प्राप्त कर सके। अपने जो ज्ञान हमें जो इतने हजारों साल पहले जो हमारे साथ था, उसको हम कैसे अपने साथ फिर से दोबारा ला सके। मुझे उम्मीद है कि जब संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृत के विद्वानों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। वो किस तरह जो है इस अपनी भाषा की जो महत्व है वो इसमें दर्शा सकते हैं कि कैसे हम जो है अपना जो पुराना ज्ञान है उसको यदि पाना है तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो किताब है ये तीनों दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे साइंटिस्ट, कैसे हमारे हिस्टोरियन और कैसे हमारे जो भाषा के और भी जो विद्वान हैं जो दूसरी भाषा के भी हैं, उनको भी बहुत सारी भाषाएं जो है संस्कृत से निकलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये किताब जो है बहुत ही परिवर्तन लाएगी। ऐसी किताबें जो हैं आती रहनी चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुरुम जारी, नमस्कारम, वनक्कम। आज मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत हर्षों का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान तथा विजन इंडिया पब्लिकेशन का आभारी हूँ। साथ ही मैं अभिनंदन करना चाहूँगा महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी की लेखिका श्रीमती शरज बाला जी का। इस महाकाव्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन सामान्य को सामने प्रस्तुत करने का आपका प्रयास सराहनीय है। साथियों, आज हम सब एकत्र हुए हैं श्रीमती शरज बाला द्वारा लिखित महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी पुस्तक के विमोचन के लिए। आपकी पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी के माध्यम से हम सभी के लिए पुनः महाभारत की कहानी का श्रवण और शरण करना सुलभ होगा। इस पुस्तक के माध्यम से हम महाभारत के वैज्ञानिक स्वरूप के भी समझ सकेंगे। ये सबसे बड़ा विषय है। साथियों, यह पुस्तक महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदों व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत का एक और विवरण मात्र नहीं है, अपितु यह तो सहस्त्र वर्ष पुरानी भारतवर्ष के पारंपरिक मान्यताओं को अनेकों आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से यह प्रमाण देती है कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा कितने सार्थक थी, है और रहेगी। मैं हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। यह ज्ञान प्रणाली जीवन दर्शन, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विविध ज्ञान विज्ञान के धरोहर है।
इस धरोहर को जन जन तक पहुंचना हम सभी का उद्देश्य है। महाभारत महाकाव्य है जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000। अगर मैं यह कहूं इसमें सभी शास्त्र का सार समाहित है तो यह गलत नहीं होगा। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दर्शन के विवरण समाहित है। नैतिकता ज्ञान राजनीति, धर्म और दर्शन रूपी धाराओं से बना एक महासागर है। इसमें 18 पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व, बाण पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सप्तिका पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वशिका पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व और स्वर्गा आरोहणिका पर्व सम्मिलित है। इस महाकाव्य में निहित कहानियां, गीत, उपाख्यान, दृष्टांत, प्रवचन और बातें अद्भुत और अत्यधिक शिक्षाप्रद है। साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं महाभारत के महत्वपूर्ण अंश जगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करना चाहूँगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता केवल महाभारत का अंश मात्र नहीं, अपितु हर कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का एक कुंज भी है। अनन्य चेता शततम यो मां स्वरति नित्यश तस्वायः सुलभ पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिना। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथानंदन, अनंत चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर शरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। साथियों, महाभारत का युद्ध एक न्याय संगत धर्म युद्ध था जो हर व्यवस्था में पूर्ण न्याय और निष्पक्षता की सीख देता है। उदाहरण स्वरूप, रातों में कोई लड़ाई नहीं होती है। हमारे तो आज यूनो बन गया, बहुत कुछ बना है। ये हम कर पाए अभी तक हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन उस समय हमारे व्यवस्था में वो था। जब शत्रु के हाथ में हथियार नहीं होते थे तो उस पर कोई वार नहीं करता था। साथियों, महाभारत के विभिन्न पर्वों में इतिहास, समाज शास्त्रों, राजनीतिक शास्त्रों, वास्तु शास्त्रों, खगोल शास्त्रों, भौतिक शास्त्र आदि के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका वैज्ञानिक प्रमाण आज हम सभी के सामने विभिन्न रूप में आता है। इस पुस्तक में महाभारत के श्लोकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा सभी खगोलीय संदर्भ को क्रमिक रूप से उद्धृत किया गया। साथ ही इस पुस्तक में अनुवाद संबंधी सभी विवादों को उत्कृष्ट संस्कृत विद्वानों की सहायता से सुलझाया गया है। साथियों,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, 3153 वर्षों ईसाई पूर्व से 3101 वर्षों ईसाई पूर्व तक के 52 वर्षों की अवधि में देख गए 26 क्रमिक आकाशीय दृश्यों के स्क्रीनशॉट लिए गए। ये सभी महाभारत में वर्णित महत्वपूर्ण घटनाओं के समय महर्षि व्यास जी द्वारा आकाश में देखे गए नक्षत्र एवं ग्रहों की स्थितियों के विवरण से यथार्थत मिलते हैं। खगोलीय तिथियों के निर्धारण के पश्चात अन्य सहायक पुरातात्विक साक्ष्यों के खोज में महाभारत के श्लोकों से तालाबों और गोदामों, रथों और घरों, शस्त्रों और शिवलिंगों, अस्त्र एवं धातु की अन्य वस्तुओं, रत्नों एवं आभूषणों, पेड़ों और फसलों, अनाज और जड़ी बूटियां आदि के संदर्भ निकलकर सूचीबद्ध किए गए इस पुस्तक में। साथियों, इस पुस्तक में शोध उपरांत मिले तथ्यों की तुलना महाभारत में वर्णित राज्यों के क्षेत्रों में स्थित पुरास्थलों से उत्खनित नमूनों और कलाकृतियों से की गई। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्यों ने महाभारत युद्धों के खगोलीय तिथियों का समर्थन किया है, जो इसे 3139 ईसा पूर्व से संबंधित माना है। साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, इस बार आइए भूगोल पर देखिए, को भूगोल का व्यापक ज्ञान रखने वाले महर्षि व्यास ने उत्तर में गांधार से लेकर दक्षिण में भारत सागर तक, पश्चिम में सिंधु शोवीर से पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर तक के नगरों का उल्लेख करते हुए उनके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित स्थलों के संकेतों सहित आसपास बहते वाले नदियों का विवरण भी इस पुस्तक में दिया है। इस पुस्तक में महाकाव्य महाभारत की वैज्ञानिक व्याख्या एवं स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न अति सराहनीय है। प्रिय बच्चों, शिक्षकों, आप सभी का दायित्व है भारतीय संस्कृति को समृद्ध एवं संरक्षित रखना और इसको प्रसार भी करना। दुनिया में आप सभी को संस्कृत भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं, खासकर अपनी मातृभाषा के संरक्षण और प्रचार हेतु कार्य करना है। आप सबको संपूर्ण वैदिक वाङ्मय, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्म ग्रंथ, काव्य, नाटक, व्याकरण तथा ज्योतिष शास्त्रों संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होकर इनकी महिमा को बढ़ाते हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होते हैं। संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन एवं प्रचार प्रसार में आधुनिक विद्याओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इंटरनेट का सदुपयोग करके देश के विभिन्न प्रदेशों के, राज्यों के गांव-गांव तक संस्कृत शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए। साथियों, मैं पुनः संस्कृतज्ञों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भारतीय ज्ञान प्रणाली की आवाज बने, विभिन्न विषयों पर शोध करें तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों, इन अमूल्य सूत्रों और श्लोकों का अनुवाद करें। मैं शिक्षकों से यह आग्रह करूंगा कि आप
सब आपने सहयोग से सभी विद्यार्थियों द्वारा बोले जाने वाली विभिन्न भारतीय भाषाओं से संबंधित सेमिनार या वर्कशॉप का आयोजन करें। इसका ऊपर भी साथियों, मैं पुनः इस पुस्तक के लेखिका श्रीमती शरज बालाजी के शुभकामनाएं देता हूं। आपकी पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी एक असाधारण पुस्तक है, जिसमें महाभारत की कहानी को विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बताया गया है। आपके इस प्रयास के लिए अनेक शुभकामनाएं। अब मेरा इतना ही सुझाव है कि इतनी वैज्ञानिकता डालने के बाद मेरी विनम्र प्रार्थना है मंत्री जी से कि कुछ पुस्तकें बिना किसी हेजिटेशन के करिकुलम का हिस्सा बने, टेक्स्ट बुक्स बने, स्कूल में बने और उसमें वैज्ञानिक आधार भी डाला जाए। सर It is being noted and it will be done.